Hello, everybody. Welcome to my show, New World, New Outlook. I'm your host, Swati Vyas, and I am on a journey to solve the problem of digital empowerment amongst the seniors of the society. And in that spirit, and also in the spirit of my own journey, I thought, why not listen to the stories and discuss the stories of people around us and know their true personalities beyond the labels which have been given by the society or by us. And by labels, I mean that we always think of people like mother, father, a doctor, uncle, aunt, our house help, a driver. We don't see through the person who is behind that label. And because we are so much occupied with ourselves and our lives and the works we are doing, though, that's why often we tend to forget looking at the person as an individual entity, and we just stick to the labels that have been given to them. So in that spirit, I thought, why not listen from the people who are they behind those labels? And for this, I am very happy and blessed to say that I'm starting this journey with my mother, and I have been talking to her throughout my life. I'm blessed with good communication with my parents, and I've realized in the last few months that she is way beyond than just my mother. She has a whole story. She is a generation who has seen three different eras, three different types of lives, and so many episodes to share with. So I thought, why not share it with everybody? Such an interesting story. Also, she is my power, she is my inspiration, and currently, she is on a great movement. She is a breathing warrior, and she inspires everybody who comes in contact with her. Everybody who speaks to her is inspired. So I'm blessed to be with her all the time. And with no more delay, I would like to call upon her. Here is my mother, Madhu Vyas, and she is my first guest. Namaskar. So this is us in front of you, and I would really like to understand who this person is beyond this label, beyond this name. मधु व्यास के पीछे के मधु के बारे में मेरे को जानना है और मुझे समझना है कि how do you feel about your life, your journey, and it is still going, and you are now starting a new journey. So how is it? How's the life? तो आप बताइए. And welcome to this show, and thank you so much मेरा guest बनने के लिए. So Thank you, beta, for your lovely words and love. thanks ma. तो आप अपने बारे में बताओ, आप कौन हो? मैं सिंपल परिवार की एक लड़की हूँ. हमारा परिवार बहुत सिंपल सा था. एक मीडियम फैमिली के परिवार में पली हूँ मैं. मेरे फादर स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास जी पुरोहित बहुत हार्ड, और मेरी मदर तेरी नानी लक्ष्मी देवी पुरोहित दोनों बहुत ही हार्ड वर्कर, ऑनेस्ट, हम्बल और लोगों की सेवा करने पर तत्पर रहते थे. उन्होंने हमेशा अपने परिवार को बांध के और बहुत ही प्यार से रखा. उन्होंने अपने पूरे परिवार को और अपने फादर के परिवार को, यानी कि मेरे चाचा बुआ सबको, काका बाबा को, सबको इस तरह से बांध के रखा कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता था कि कौन काका है कौन बाबा है. हाँ. तो इस तरह से हम एक जॉइंट फैमिली में रहे. और
उस टाइम कोई सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा नहीं होते थे। पापा जी जो है मेरे वो जयपुर में रहते थे और उनकी इनकम 2 डिजिट में थी। सुन जब के विश्वास नहीं हो रहा। सुन के तो हमें भी विश्वास नहीं होता था जब वो बताते थे कि 1 रुपए किलो गेहूँ आते थे और इस तरह की बातें, लेकिन ये फैक्ट है। तो उस टाइम भी वो 70 रुपीज़ की 80 रुपीज़ या जो भी इनकम होती थी, उस 2 डिजिट में, मतलब 2 डिजिट तो अंडर 100 थी, लेकिन उसमें भी वो बहुत अच्छे से अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। तो इस तरह से मैंने वही देखा और वही सीखा और मुझे ज़िंदगी में कभी कोई, हम 6 भाई-बहन थे, हम सबकी पढ़ाई-लिखाई प्लस मेरे रिलेटिव जो चाचा-ताऊ थे उनकी भी पढ़ाई-लिखाई, शादी-ब्याह, सोशल जितना भी होता था वो मेरे मम्मी-पापा जी अच्छे से सँभालते थे। तो उस टाइम में सफ़र करना भी एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क थी। हम लोग जयपुर रहते थे और बिलॉन्ग जोधपुर को करते हैं, तो हर दिन ये रहता था कि आज वो है फंक्शन तो आज जोधपुर जाओ, आज उसकी डेथ हुई तो जोधपुर जाओ। इस तरह से वो भी सब वो निभाते थे। तो लेकिन हम 6 भाई-बहनों को बराबर उन्होंने अच्छे से पढ़ाया-लिखाया और बहुत अच्छा हमारी परवरिश की। हमें कभी ज़िंदगी में कोई अभाव नहीं हुई फ़ील हुआ। आज सारे भाई-बहन हम वेल एस्टेब्लिश हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, सेंट, पब्लिशिंग हाउस है हमारा। तो इस तरह से सभी वेल एस्टेब्लिश हैं। और ये सब मेरे पापा की, मम्मी की जो हार्ड वर्किंग और दूसरों की सेवा करना, स्पिरिचुअल लाइफ, जो बहुत स्पिरिचुअलाइज़ थे, बहुत भगवान में विश्वास करते थे, उनके विश्वास और आशीर्वाद और उनकी दुआओं से आज सब हम वेल सेटल्ड हैं। तो सुख सुविधाएँ उस टाइम इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हमें उनका भाव नहीं लगता था क्योंकि हम सोचते थे ये जीवन है। जो था वो हम सब में था। तुझे विश्वास नहीं होगा कि हमारे घर में लाइट भी नहीं थी। और हम लोग लालटेन में पढ़ते थे। उस टाइम अंगीठी जलाना, लालटेन में पढ़ना ये सब नॉर्मल बात लगती थी। एवं तो हमारे घर में घड़ी नहीं थी। हम धूप के डायरेक्शन से कि सूरज किधर है, उस डायरेक्शन से हम लोग टाइम का पता करते थे। या हमारे सामने जो पुलिस लाइन थी उसका घंटा बजता था, उससे हम कहते थे कि अब उसमें बोल रहे 4 तो 4 बज गए और नहीं तो सूरज इधर चला गया तो इतने बज गए। इस तरह से हम टाइम का पता करते थे। लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे घर में घड़ी क्यों नहीं है। और इस तरह से हमारा जीवन चलता रहा। हमने सबने अच्छी स्टडीज की। मेरे पापा मम्मी ने हमेशा यही सिखाया कि हमेशा हार्ड वर्कर बनना है, ईमानदार बनना है और बोली एक ऐसी चीज है जो बहुत ही अमूल्य है, तो हमेशा अच्छे से व्यवहार करना सबके साथ। तो फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा, मेरे पापा जी मम्मी ने कभी भी हम में कोई फर्क नहीं समझा कि मैं लड़की हूँ या भाई मेरे लड़के हैं। और मेरे पापा ने खुद ने जीवन में ऐसा कभी नहीं किया। वो घर का सारा काम करवाते थे, जितना वो मदद करते थे। इसी तरह से मेरे भाई भी सारी मदद करते थे। तो हमने कभी लड़का लड़की का फर्क नहीं देखा, जो कि अमूमन समाज में था। लोग कहते थे कि अरे लड़का होके पानी कैसे पिएगा, उसको पानी पिलाओ। हमें नॉर्मल बात लगती थी कि क्यों, मेरे भाई तो पीते हैं। तो मैं जब दूसरे घरों में देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और इसी तरह से फिर मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में भी मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मिला। तेरे दादाजी भी इसी तरह से बहुत हेल्पफुल थे और वहां पर भी वही सब कुछ माहौल मिला मुझे, सेम भक्ति वाला और अच्छा व्यवहार का सब कुछ। पर तेरे डैडी भी मुझे ऐसे ही मिले। तो कहते हैं ना, जैसा आदमी होता है उसको वैसे ही इंसान मिलते हैं। तो तेरे डैडी भी वैसे ही मिले। वो भी उसी तरह से सबका रेस्पेक्ट करना, लोगों की सेवा भाव और भक्ति भाव, प्यार करना। और सबसे बड़ा बात इन लोगों में ये थी,
नाना जी में और डैडी में कॉमन कि ये रूढ़िवादिता को नहीं मानते थे। जो रूढ़िवादिताएं होती थी उनको ही अगेंस्ट करते थे। जैसे दहेज प्रथा है और लड़कियों पे तवज्जो नहीं करना, घूंघट प्रथा, ये सब का विरोध करते थे। तो हमारे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सब अच्छा हो रहा था। तो ट्रबल क्या फेस हुई आपको? ट्रबल तो फेस बस सुख सुविधाओं की अगर मानो तो टीवी नहीं था हमारे यहाँ, जब रेडियो नहीं था। अब वो तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो हाँ, टीवी कहाँ से होता? मतलब ये सब लोगों के घर में होती थी चीजें। ऐसे धीरे धीरे ये टाइम आया, लोगों के घर में टीवी, फ्रिज या रेडियो, सबसे पहले रेडियो आया। तो ये सब था कि हमारे पास नहीं है, पंखा नहीं है, लेकिन हमारा घर इतना अच्छा एनवायरनमेंट में था कि हमें इन चीज की महसूस ही नहीं हुई कभी। और आज देखो अपन ऑनलाइन बात करें, हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं। हेलो अतुल मोरे जी, थैंक यू, ग्रेट टू सी यू ऑल्सो। श्रीधर जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। श्रीनिवास जी, थैंक यू। श्रीनिवास जी ने मैसेज किया, हाय द लवली डुओ। सितेश गुप्ता जी, नमस्ते आपको भी। तो ये जर्नी के बारे में आप बताओ कि जो आप बताती हो कि जब आप छोटी थी, फिर जब मैं छोटी थी, और जो आज जिस टाइम में हम रह रहे हैं, इन तीनों के बारे में आपका क्या कहना है? इन 3 टाइम्स, 60 इयर्स की लाइफ और इनको 3 में डिवाइड करें, 20 साल, तो 20 साल की मधु, 40 साल की मधु और 60 साल की मधु में के एक्सपीरियंस में क्या फर्क है? ये एक्सपीरियंस में फर्क है कि जब मैं 20 साल की पहले की थी, तो उसमें मैंने अपने पेरेंट्स को जो देखा, उनका हार्डवर्क, और वो मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, लेकिन वो एक जेलर की बेटी थी, तो उनमें वो जीन्स थे। तो वो उतनी, और उनके भाई जो थे मामा मेरे, वो कम्युनिस्ट थे, लीडर। तो उनको मैंने घर में चूल्हा जलाने से लेके, नारे लगाने से लेके, मीटिंग में भाषण देते हुए तक भी सुना है मम्मी को मैंने। और जब इलेक्शन होते थे तो पोलिंग पे बैठना, और लोग जो गड़बड़ियां करते हैं इलेक्शंस में उनको पकड़ना, इन सबको किया है उन्होंने। तो वो जीन्स आगे से आगे उनके बोल्डनेस उनकी बहुत थी। और उस टाइम में जो पढ़ाई का दौर था, तो लड़कियों पे ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे। वैसा हमारे यहाँ नहीं था। मेरी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया गया, जैसे मेरे भाई पे था वैसा ही मुझ पे भी था। और शादी में जैसे जल्दी शादी करने का होता था, तो ऐसा भी मेरे पापा ने नहीं सोचा था, लेकिन मेरी किस्मत थी कि मेरी जल्दी शादी हो गई। लेकिन मेरे पापा हमेशा मना करते थे कि मैं अभी इसकी शादी नहीं करूंगा, लेकिन हो गई। उसके बाद जो स्ट्रगल लाइफ में आया, तो वो अकेले रहने का आया कि जब शादी हो गई और पढ़ाई पूरी हो गई और तुम लोग आ गए मेरी लाइफ में। जब नहीं, इसके पहले मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आज की डेट में भी लड़कियां शादी होते ही बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि वो पढ़ाई छोड़ देंगी, या जॉब छोड़ देंगी, या जॉब स्विच करेंगी। बिल्कुल। उस जमाने में आपने और डैडी ने ये कैसे सोचा कि शादी के बाद भी आप पढ़ोगी, और रेगुलर रह के पढ़ोगी, और हॉस्टल में रह के पढ़ोगी? ये आपके ख्याल कैसे आया? हाँ, ये हमारे इस तरह से आया कि डैडी भी विश्वास नहीं करते थे और नाना जी विश्वास नहीं करते थे कि बच्चे की पढ़ाई बंद कर दी जाए। मेरा सब्जेक्ट म्यूजिक था, तो वो और कहीं नहीं था। तो ये डिसाइड हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने जाके और डैडी के पेरेंट्स से बोला कि प्लीज अभी 2 साल इसको यहाँ पढ़ने दीजिए, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में थी और फाइनल करना जरूरी था। तो इस तरह से मेरी स्टडीज हुई, और डैडी ने भी मुझे डिसाइड किया कि नहीं, मैं इनको पढ़ने के लिए इनकी पढ़ाई नहीं रोकूंगा, और सेक्रीफाइस किया। और जब बीए हो चुका था मेरा, तो फिर दादी जी ने मम्मी पापा जी को बोला कि नहीं प्लीज हमारे कहने से आप 2 साल आप इन्हें पढ़ाई के एमए कराएं। इस तरह से मेरी पढ़ाई हुई, और हमने भी सेक्रीफाइस किया कि जब लड़कियां नहीं रहती आफ्टर मैरिज, इंतजार करती है कि आज मेरी सगाई हो गई, पढ़ाई छोड़ दी।
तब हमने भी किया कि नहीं हमें पढ़ना है, और मेरा ये था कि मैं कभी भी घर में नहीं रहूंगी, मैं जॉब करूंगी। मैं डैडी से हमेशा कहती थी मैं जॉब करूंगी, डैडी भी कहते थे हाँ। और मैंने उस टाइम ट्राई भी की, लेकिन उस टाइम तुम लोग आ गए, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि बच्चों के कैरियर के लिए हमें एक जगह रहना जरूरी है, क्योंकि डैडी का टूरिंग जॉब था। तो फिर तुम्हारे कैरियर के हिसाब से मैंने चूज किया। पर ये स्टोरी तो मैंने बहुत बार सुनी है, पर मैं जानना चाह रही हूँ कि एक लड़की जिसने शादी के मतलब पूरे समाज के जो नॉर्मल नॉर्म्स थे उसके अगेंस्ट जाके अलग रह के अपने हस्बैंड से, जो इतनी मेहनत से आपने 7 साल 8 साल पढ़ाई की, भैया से भी आप दूर रही, आपने हर सेक्रीफाइस किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये आपकी लाइफ का डिसीजन था कि अब मैं पढ़ाई छोड़ के, अपना जॉब छोड़ के, अब मैं मेरा पूरा फोकस मेरे बच्चों पे करूंगी, तो उस मधु के दिमाग में क्या चल रहा था? वो जो 31 इयर्स की मधु थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वो ये चल रहा था कि ठीक है, जैसा भी मेरी लाइफ में मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी है, जॉब ना सही, मैं अपना बच्चों का कैरियर बनाऊंगी। तो जिस तरह से लोग अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, तो मैंने कभी तुमको ट्यूशन नहीं भेजा, मैंने तुम्हें अपने आप पढ़ाया। और तुम्हारे स्कूल्स में और जो भी पेरेंट्स मीटिंग होती थी सब में मैं एक्टिवली करती थी। और डैडी ने मुझे जो कमी मेरी लाइफ में रह गई थी वो सारी पूरी की। उन्होंने मुझे समाज में किस तरह से सबके साथ बोल्डली रहना है। पहले ये था कि लड़कियां लड़कों से बात नहीं करेगी, आदमियों से बात नहीं करेंगे, कहीं ऑफिस में नहीं जाएंगे, लेकिन डैडी ने बोला कि नहीं, ऐसा क्यों, सब जगह जाना है, सबसे बात करनी है, किसी से भी डर के नहीं रहना है, अपने आप को बोल्ड बनाओ और समय के अनुसार अपने आप को बोल्ड बनाओ और उनसे मतलब लड़ने की ताकत रखो, अगर कुछ गलत होता है तो, नहीं तो गलत हो ही। तो ऐसा डैडी ने मुझे सिखाया। तो मैंने जो मैं घर में रहने वाली थी वो मैंने सारा कुछ सीखा, बैंक का काम, ऑफिसेज का काम, सब कुछ मैंने किया। तुम्हारे स्कूल्स की पढ़ाई, स्कूल्स में एडमिशन करवाना। स्कूल से मुझे एकदम से दिमाग में आया कि आज जो ऑनलाइन स्कूल्स चल रहे हैं, और वो टाइम था जब मैं छोटी थी या भैया छोटा था और हम स्कूल में थे, उस एरा में आप क्या बोलोगी, क्या क्या चेंजेस देखे आपने? वो जो 40 इयर्स की मधु थी उसका एक्सपीरियंस और आज जो आप हो उसका जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो चीजें चेंज हुई इतना ज्यादा वर्ल्ड में, जो आप बोल रहे हो सुख सुविधाएं, वो बड़ी, उनके बारे में आपको क्या लगता है? आज क्या फीलिंग होती है अंदर से जब देखती हो कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लैपटॉप पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसा फील होता है? सही है, बिल्कुल। पहले बच्चों की स्कूल में एडमिशन कराना कोई मुश्किल नहीं था। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे पेरेंट्स ने बहुत आराम से हमारा एडमिशन कराया। जब चाहे स्कूल में एडमिशन हो जाता था, जब चाहे छुट्टी मार लेते थे, वापस री एडमिशन की दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब तुम्हारी टाइम आई तो पेरेंट्स के इंटरव्यूज होने लगे। तो जब तेरा एडमिशन कराया था तो पहले मेरा और डैडी का इंटरव्यू हुआ था कि क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के काबिल हैं, हमारी क्या तनख्वाह है, हमारा क्या स्टेटस है, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये सब चीजें होती थी। लेकिन आज जो टाइम है, और उस टाइम भी ये नहीं था कि बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड हो, बच्चों को कुछ भी नया बॉक्स दिलवा दिया, वो कर दिया तो बच्चे खुश होते थे। और ये जरूर था कि बच्चों की और हमारी पढ़ाई में डिफरेंस आया कि हमारी इतनी नहीं होती थी कि आज सैटरडे की ड्रेस अलग होगी, वेडनेसडे की ड्रेस अलग होगी। तो इस तरह से खर्चे बढ़ते गए बच्चों की संग। लेकिन आज की टाइम का जो खर्चा है या युग है, वो तो अब हर बच्चे के पास, आजकल के कंप्यूटराइज बच्चे हैं, हर बच्चे के पास लैपटॉप है, हर बच्चे के पास मोबाइल है। अगर बच्चे, छोटे बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबीज को भी आप अगर मोबाइल दे दो खेलने के लिए, खिलौने वाला, तो वो नहीं लेगा, वो उसको फेंक देगा। वो उसको कहेगा नहीं, मैं वो मोबाइल दो। और मैंने कई पेरेंट्स का सुना है कि उन्होंने अपने नए नए फोन बच्चों के साथ उड़वाए। तो ये फर्क हुआ है। और आजकल ऑनलाइन पढ़ाई भी हो गई है, तो सभी चीज डिजिटली सीखना जरूरी है। और इस
सीखने की बात में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मैंने बहुत सीखा है, मैं खुद भी बहुत साल पढ़ी, मैंने लोगों को भी पढ़ाया और मेरे साथ के लोगों को भी पढ़ाते या पढ़ते देखा। लेकिन मैं अगर आपको एज़ अ थर्ड पर्सन भी देखूँ, तो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ कि आप एक बहुत ही एक्सीलेंट लर्नर हो। और बहुत सारे लोगों को जब मैं और आपकी एज के या आपके साथ के लोगों को देखती हूँ, तो वो थोड़ा-सा रिलक्टेंट हैं, उन्हें लगता है कि ये सब हमारे काम का नहीं है या इससे लोग बिगड़ जाएँगे या ऐसा लगता है कि इसी मतलब मोबाइल जैसे जोक्स भी आते हैं कि सब कारण जो है दुनिया में गड़बड़ होने का वो मोबाइल है। तो आप ये कैसे सीख पाती हो? मतलब आपके दिमाग में क्या आता है कि आपको नई-नई चीज़ें सीखना क्यों है आपको? मतलब ये क्या होता है आपके दिमाग में? कि आप ये भी नहीं सोचती कि मैं आपसे छोटी हूँ और आप मेरी मम्मी हो या कोई आप मैंने आपको देखा है कि आप एक छोटे से छोटे बच्चे से भी सीखने की इच्छा रखती हो। तो ये कैसे आपके दिमाग में आता है? सीखने की कैसे कोई करती उम्र हो? नहीं होती है बेटा। क्या पता किस समय किस की बात से आपको क्या समझ में आ जाए। तो जब वो सब दुनिया अपने आप पे ध्यान देती थी, तो मैंने मी और मॉम में मॉम चुनना पसंद किया। मैंने मी कभी नहीं चुना। तो उस टाइम मैं जब सिर्फ तुम पे ध्यान देती थी, तो मैं तुम्हारे लिए नई-नई चीज़ें पढ़ती थी कि मैं तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए कैसे तुम्हें आगे से आगे तैयार करूँ। तो तुम लोग सो जाते थे, लेकिन मैं बैठ के तुम्हारे क्वेश्चंस देखती थी। 10 इयर्स के क्वेश्चंस सर्च करती थी। तुम्हारी बुक सर्च करती थी। बुक दुकानों पे जा के किताबें लाती थी। याद है ना? तो जब मैं सुनती थी तेरे से वर्ड्स और देखती थी, तो मैं उसी तरह से उसको पिक करके वो चीज़ लेके आती थी, ये शायद तेरे काम की हो। ये तो मैं समझ गई। लेकिन आप ये ऐसा कर कैसे पाती हो? मतलब बहुत सारे लोग आज की डेट में उनको लगता है कि आज वो 60 साल के हो गए, उनका जीवन खत्म है। नहीं, अब उनको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नई चीज़ें सीखती जाओ? मतलब मैं एक्चुअली उसके पीछे की सोच जानना चाह रही हूँ कि आप क्यों इतना क्यूरियस हो नई चीज़ें जानने के लिए और फिर आप सीख कैसे लेते हो? आपको ट्रबल नहीं होती सीखने में? नहीं, मेरे को ये लगता है कि हम अपने माइंड को जितना फर्टाइल रखेंगे, उतना ही वो वर्क करेगा। अगर मैं चुप होके बैठ जाऊँगी, कुछ भी ना सीखना चाहूँगी, तो मेरा दिमाग वैसे ही हो जाएगा। और मैं एकदम नहीं के बराबर मैं उसको बेजान मानती हूँ। जो नहीं सीख रहा वो बेजान है मेरे हिसाब से। तो मैं वो सीखने वाली भावना मेरे में हमेशा रही है। और उससे जैसे मैं बीच में बीमार हो गई थी, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं उसी तरह से रहती, तो हो सकता है कि आज मैं ठीक ही ना हो पाती। लेकिन मैंने उस टाइम सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। और मैंने सोचना शुरू किया, सीखना शुरू किया और मुझे नई चीज़ सीखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इस तरह से मैंने तेरे से सीखना शुरू किया। और जब शुरू में अगर मैं कैंडी क्रश भी खेलती थी, तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता था। और कैंडी क्रश में कॉम्पिटिशन करना, ये भी बड़ा मज़ा आता था। और अगर उसमें कुछ मिल गया, तो ऐसा लगता था मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये सीखने की हमेशा मुझ में रही है। और अब तो सीखने का बहुत कुछ है। आप किसी से भी बात कर सकते हो, किसी को भी टेक्स्ट कर सकते हो। आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं थोड़ा रूडली भी बोल देती हूँ या मेरे को जब रिपीट आप बार-बार एक ही क्वेश्चन पूछते हो, तो कई बार पेशेंस भी लूज़ होता है। और एक ये भी होता है कि जब मैं किसी से कुछ पूछ रही हूँ, इसका मतलब वो मुझे नहीं आता। तो मुझे अपना ईगो कम करके पूछना पड़ेगा। एक बार के लिए मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे कुछ नहीं आता है। तो ऐसे आपको नहीं फ़ील होता, आपकी ईगो नहीं हर्ट होती कि नहीं, मेरी ईगो हर्ट नहीं होती है। मैंने बचपन से ये देखा है कि मेरे जो छोटे भाई थे, मैं उनसे भी पूछ लेती थी घर पे आके कि आज स्कूल में ये पूछा था और ये मैथ्स की चीज़ मुझे नहीं आती, तो मुझे बता दे। ऐसा नहीं कि मैं स्कूल में डिफीट खाऊँ। बनस्पत की मैं घर में छोटे भाई से सीखना पसंद करती थी, लेकिन मैं स्कूल में नंबर 1 रहना चाहती थी। तो
छोटे बड़े सीखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज चाहे तू छोटी है लेकिन तुझे मेरे से ज्यादा नॉलेज है, तो वो मैं अगर सीखना चाहती हूँ तो मुझे वो सीखनी पड़ेगी, वो चाहे तू है चाहे कोई और भी टीचर है, कहीं भी जाके सीखूं। लेकिन सीखने के लिए छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता। हमारी उम्र के लोगों में वो बात होगी नहीं, क्योंकि हमने न तो कंप्यूटर देखे हैं, न ये टेक्नोलॉजी इतनी डिफिकल्ट है, इनकी लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है, हम नहीं समझ सकते इतनी जल्दी। तो जिस तरह से मैं रुक जाती हूँ कि मेरे को ये नहीं आ रहा, हालांकि तो 10 बार बताती है फिर भी, तो उसी तरह से हमारी एज के सभी लोगों के साथ होगा। अगर किसी ने सीख भी लिया है, अमूमन तो लोग यही करते हैं कि नहीं अब हमारी क्या उम्र है, क्या हम क्यों सीखें, हमें क्या करना है, अब हमें तो बस काट रहे हैं। अरे काट नहीं रहे हैं भाई, हम जी रहे हैं और हम बहुत अच्छी हैप्पी हेल्थी लाइफ जिएंगे। तो ये सोच भी हर किसी में नहीं होती। तो आप मुझे ये बताओ कि जब आप ये पढ़ती हो, ऑब्वियसली ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, ये आप नहीं समझ पा रही हो कि क्या लिखा है, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, कौन से बटन से क्या होगा, तो ये कंफ्यूजिंग भी है और ये थोड़ा सा डरावना भी है। क्योंकि ऐसा भी फियर ऑफ अननोन होता है कि ये दबाने से पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप उसको कैसे ओवरकम करती हो? बताऊं एक बात, मैं जब शुरू में कंप्यूटर घर पे आया था अपने, तब मैं इतना डरती थी कि अगर कुछ थोड़ा सा वायर भी हिल जाता था तो वो कंप्यूटर में कुछ डिजिट्स अलग आने लग जाती थी। तो मुझे इतना डर लगता था कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया बच्चों में। मैं इतना डरती थी, मैंने कभी किया नहीं था। और जब तुम लोग आते थे मैं कहती देखो मेरे से थोड़ा सा तार हिल गया है, ये पता नहीं क्या हुआ, देखो। मैं भी डर जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सीखने से मेरा डर कम हुआ। नंबर अगर मुझे अब जैसे आंखें भी थोड़ी कमजोर हो गई हैं, तो मुझे नहीं दिखता कि ये क्या लिखा है, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने अपना गूगल किया, तुम लोगों से सीख लिया, तो गूगल किया और मैंने रीडिंग ग्लास मंगवा लिया तुमसे बोल के कि भाई ये रीडिंग ग्लास है, मुझे मंगवा दो। तो इस तरह से मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। रिसोर्सफुल तो आप बहुत हो। हाँ, और जैसे देखती हूँ कि ये ब्लू बटन दबाने से ऐसा होगा, तो मैं ध्यान रखती हूँ वो ब्लू बटन दबा दूंगी, रेड बटन से ऑफ होगा तो मैं ऑफ कर देती हूँ। तो ये भी थोड़ा मैं दिमाग में रखती हूँ कि किस तरह का और कहाँ पर मुझे वो चीज आएगी, जैसे लाइट यहीं पे होगा, ये सब चीजें भी ध्यान रखती हूँ। तो इस तरह से मैं ये नई सीख पा रही हूँ। और अब जैसे तुम लोग करते हो कि पोस्ट हमने वहां पे कर दिया, वो कर दिया, सब बातें तो मैं सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं भी क्यों ना करूं, मैं कब तक तेरा वेट करूं, और फिर तुझे अपना भी काम है मेरा भी काम है, तो मैं हेल्प कैसे करूं। तो मैं इस तरह से तेरी हेल्प कर सकती हूँ, तेरा काम ओवरकम कर सकती हूँ। हाँ, तो मैंने जैसे अभी पब्लिश सीखा, पोस्ट करना सीखा। तो अब आपने सारे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो जनरेशन है, मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जनरेशन लगती है, क्योंकि आप लोगों ने वो लालटेन और वो जो बम गिर रहे हैं और जब स्टोरी सुनाती हूँ दंगे हो गए, दंगों में फंस गई, मतलब एक वो जमाना जब ये भी नहीं पता था कि कल खाना मिलेगा या नहीं, जो वो वाला इंडिपेंडेंस के बाद का एरा था, उस एरा से लेके आप आज इस जमाने में हो जहां आपको अगर एक छोटी सी भी चीज चाहिए तो आप सीधा ऑनलाइन ऑर्डर करती हो और सुबह तक वो मिल जाता है। तो ये सारे एराज को देख के और आपने सबका पूरा भरपूर आनंद भी उठाया। बिल्कुल। जब एग्जीबिशंस थी, आप एग्जीबिशंस में भी बहुत मुझे लेके गई हो, और आज जब अमेज़न पे दिवाली धमाका होता है तो आप उसको भी एंजॉय करती हो। तो ये सारे एराज में रहने के बाद में आपको कैसा, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है आपका, और अभी भी आप एंजॉय कर रही हो जो नई नई चीजें आ रही हैं, तो आपको कैसा लगता है कि बेस्ट टाइम कौन सा था? बेस्ट टाइम अभी का है, क्योंकि जैसे पहले मेरे को कोई चीज लेनी होती तो मैं एग्जीबिशन में जाती थी, घंटों अपना टाइम लगाती थी। एग्जीबिशन भी ऐसा नहीं कि आज लग गई कल फिर लग गई, साल में एक बार इंतजार करना पड़ता था, और उस टाइम अगर चूक गए तो वो साल गया। तो मैं और उसमें जाती थी, तुम लोग छोटे छोटे थे, बहुत मुश्किल से होती थी, कन्वेंस भी नहीं थी कुछ, और तब इतनी फाइनेंस भी नहीं थी कि जो चाहिए वो ले लिया। हाँ, जो चाहिए जो ले लिया, यार आप कोई भी विकल्प करके चले जाओ।
तो वो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन उसमें फिर जाती थी और नई नई चीज देखती थी, और जितनी मेरी होती थी पॉकेट उतना मैं, और साल भर उसके लिए मैं बचत करती थी, तो मैं जितना कर सकती थी मैं उस टाइम करती थी। लेकिन आज अमेजोन पे और इन पे आए दिन तो फेस्टिवल होते हैं, आए दिन ऑफर्स होती हैं और वो चीजें दिखती हैं जो कि एग्जीबिशन में भी जाके नहीं मिल पाती थी। तो आज का टाइम बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, घर बैठे हुए आप हर चीज मंगा सकते हो। अब कोई भी चीज देखी, अब बहुत छोटा सा उदाहरण दूं, टैबलेट्स लेती हूँ मैं अपनी, तो उनको कट करने की भी मशीन आती है, टैबलेट कटर। और उसमें भी आपको 1 पोर्शन करना है, 2 पोर्शन करना है, 3 करना, 4 करना, इतनी फैसिलिटी। तो लेकिन अक्सर आपकी जनरेशन का अक्सर ये कहना रहता है कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था और आज की जनरेशन तो बर्बाद है। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस स्टेटमेंट पर? ऐसा कहीं नहीं कि आज की जनरेशन बर्बाद है। आज की जनरेशन बहुत लकी है कि वो बहुत अच्छा सीख पा रही है, आगे से आगे अपना इसको क्या कहें, मतलब प्रोग्रेस कर रही है। पहले ऐसा होता था कि एक जॉब की तो आप उसी में बैठे रहते थे और सोचते थे कि मेरे लिए सफिशिएंट है, लेकिन आजकल के लोग जॉब्स का ऑप्शन है उनके पास, वो अपना अपग्रेड करते रहते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी में मुझे इतना मिल रहा है, मैं उसमें ये करूंगा, मैं उसमें इतना चला जाऊंगा, और तुरंत अपना जॉब बदल लेते हैं। पहले ये फियर बहुत था कि एक जगह छोड़ने को तैयार नहीं होते थे, एक घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, एक विचार छोड़ने को तैयार नहीं थे, एडामेंसी बहुत थी। लेकिन अब वो सब कुछ नहीं है, अब लोग बहुत फ्लेक्चुअल हो गए हैं हर तरह से। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आ गई है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लाइफ में भी होनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ, और वही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैं जी रही हूँ। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी और इस एडॉप्शन के साथ जिएंगे नई पीढ़ी के साथ मिलके, तो बहुत अच्छी लाइफ होगी, खुद की भी और नई जनरेशन की भी। नहीं तो कि ये बहू है, ये बेटी है, इसको इस लिमिट में रहना चाहिए, बेटे को इस तरह से रहना चाहिए, इसको तो ये करना ही चाहिए, ये सब जो थिंकिंग्स है, इससे बहुत मनमुटाव और दूरियां हो जाती है और जीवन में दुख भी मिलता है। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल होंगे तो आपकी दोनों की लाइफ बहुत आरामदायक रहेगी और खुशहाल जीवन जियोगे। अब जैसे तू ये मेरे को सिखाने के लिए बैठी है तो तू मेरे से बात कर रही है, नहीं तो बच्चे महीनों सालों तक बच्चे आपस में बात नहीं करते। तो ये कम्युनिकेशन गैप भी खत्म हो रहा है इस तरह से कि दादा दादी भी पूछेंगे, पोते पोते भी सिखा रहे हैं आजकल, मैंने देखा है और वो बहुत एंजॉय करते हैं उस एक्टिविटी को। और छोटे छोटे बच्चे क्या मतलब कमाल का कर रहे हैं, तो उनसे देखने में सीखने में कोई हर्ज नहीं है और बहुत अच्छा भी लगता है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपने जब भी बोला तो मुझे एक वो कहावत याद आई कि हवा के साथ ना झुकने वाला पेड़ टूट जाता है। और जो पत्तों में से हवा गुजर जाती है तो पेड़ हमेशा खड़ा रहता है, वो जिंदा रह पाता है और फ्लरिश कर पाता है। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपको नए वर्ल्ड के साथ उसका नया आउटलुक, उसके नए चीजें से अडेप्ट करके आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो और अपनी एडमेंसी से आप लूज कर रहे हो बहुत कुछ। अगर आप सिर्फ वो एक ऑर्थोडॉक्स या एडमेंसी या बस एक जो एक जिद होती है कि मुझे ये नहीं सीखना, मुझे ये नहीं करना, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। आपको, मैं मानती हूँ कि शायद वो चाय आपको ना पसंद आए, पर एक बार पी के तो देखिए। डिक्लाइन करने से पहले एक बार टेस्ट तो करो। अगर कोई चीज नहीं पसंद आ रही तो ट्राई तो करके देखो। बिल्कुल ऐसा है कि एडामेंसी की बात जहां तूने बताई है वही मैं बता रही हूँ कि जब आप मिलजुल के इस तरह से करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत खुशियां होती हैं, नहीं तो दूरियां भी बढ़ जाती है। प्लस जैसे अभी फ्रेंड्स हैं आपस में बात नहीं कर पाते, आज जैसे कोविड हो गया है, मिल नहीं पाते हैं। अगर आपने ये सीखा है तो आप इससे मिल सकते हैं वीडियो कॉलिंग करके। अब मैं 3 साल से आइसोलेशन में हूँ, तो मेरी अपनी दिवाली, होली, भाई दूज, राखी सारी मैं इसी तरह से वीडियो कॉलिंग पे कर रही हूँ।
तो ये मेरे को कितना बड़ा बेनिफिट है कि मैं अकेली भी नहीं हूँ, मुझे ये भी ना लगे कि मैं अकेली हूँ, और ना भाइयों को ये लगे कि आज हमारी बहन हमारे साथ नहीं है। हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, हम एक दूसरे के लिए गाने गा लेते हैं, तालियां बजा लेते हैं, हम एक और तो और हम शादी भी अटेंड कर लेते हैं। आज से 25-30 साल पहले जब ऋतु दी की शादी हुई थी, तो सुनील मामा ने ऑस्ट्रेलिया से लेडी संगीत किया। जब जयपुर में लेडी संगीत था तो उन्होंने वहां ऑस्ट्रेलिया में लेडी संगीत किया, और उन्होंने गेस्ट इनवाइट किए जिसमें बंगाली, पाकिस्तानी सभी थे, और उन्होंने अपना वीडियो बना के यहाँ भेजा। उस वीडियो को हमने ज्वाइन किया और वो एक हो गया। हाँ। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी कितने फायदे वाली है। हाँ हाँ। तो एडॉप्शन बहुत जरूरी है, थोड़ा लीनियंट बनना बहुत जरूरी है, उससे आपको जीवन में बेनिफिट ही होगा और आप खुशहाल जीवन जिएंगे। और जब सीखते रहेंगे तो आप हमेशा जिंदा रहेंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो एक अब जिस एक जर्नी पे आप हो, द ब्रीदिंग वॉरियर मूवमेंट, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये थॉट आपके माइंड में कैसे आया? मतलब मैंने आपको वो हर पूरे फेज से देखा है, वो ऑक्सीजन पर आना, उसके साथ का फ्रस्ट्रेशन, आपने जो पूरा सबसे शट डाउन कर लिया था अपने आप को, आप हमसे भी बात नहीं करती थी, और फिर धीरे धीरे आपका ठीक होना, फिर डैडी का जाना, उसके बाद आपका थोड़ा और इम्प्रूव होना, और फिर ये थॉट कैसे आया आपके माइंड में कि मैं किसी और की भी मदद कर दूं? क्योंकि जब हमारा सिर भी दुखता है तो हम सोचते हैं यार अभी बात मत करो, हेडेक हो रहा है। तो जब सांस भी नहीं आ रही तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मेरे जैसे और भी होंगे, मैं उनकी हेल्प करूं? ये कैसे हुआ? क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा, ये सोच पाना कि आप खुद जिस भी परिस्थिति में हो, मतलब आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे हो, और उस मोमेंट में भी ये सोच पाना कि मैं कैसे किसी और की मदद कर दूं, ये आपके दिमाग में कैसे आया? मैंने वो दर्द झेला है, मुझे उस दर्द का एहसास है, तो मुझे पता है कि वो दर्द कितना मुश्किल है और कितना पेनफुल है। तो जो दर्द मैंने सहा वो मैं नहीं चाहती कोई और भी सहन करे। और मैंने मेरे दर्द के अलावा मैंने अपने साथ वालों का दर्द देखा, मैंने तेरा भैया का, डैडी का फियर देखा है कि किस तरह से वो लोग दहशत भरे रहते हैं। हाँ। 24 आवर्स ऐसे मेरे पास खड़े हैं, एम्बुलेंस घर के बाहर खड़ी है, व्हील चेयर खड़ी है, ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार है पोर्टेबल, और कैसे मेरे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तुम तैयार हो। एवरी टाइम मेरी ऐसी सिचुएशन थी। तो उस सिचुएशन से मैंने धीरे धीरे अपने आप को, अपना माइंडसेट चेंज करके बाहर लाई। और जैसे मेरे में जीन्स हैं ब्रेवनेस के, अपने पेरेंट्स के, तो वो तो है ही, उसी से मैं अपने थोड़े मोटिवेट हुई, और फिर तुम लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो इस तरह से मैं इस स्थिति में हुई कि मैं थोड़ी ठीक हुई और मैं कुछ सीखने लगी। तो मुझे लगा कि मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, मेरे बच्चे इतने परेशान हुए हैं हर चीज के लिए कि आज ऑक्सीमीटर कहाँ मिलता है, आज ये ट्यूब कहाँ मिलती है। तो ऐसे बहुत लोग परेशान होते होंगे, तो क्यों ना हम कोई छोटी छोटी चीजें कैसे अवेलेबल हो सकती है, किस तरह से उनकी परेशानी मिट सकती है, ये बताऊं। ये सोच के मेरे मन में बात है, हर किसी को फैसिलिटी नहीं होती। हाँ, और जो आपको उस वक्त महसूस हुआ होगा, वो मैं एज अ केयर गिवर मैं देख सकती हूँ, मैं एक बेटी के रूप में देख सकती हूँ कि मैं उसको एम्पैथी रख सकती हूँ आपके प्रति, लेकिन मैं उसको महसूस नहीं कर सकती जो लड़ाई आपके अंदर चल रही है। बिल्कुल। तो जब ऐसे और ब्रीदिंग वॉरियर्स एक साथ मिले तो एटलीस्ट आप लोग एक दूसरे की बात को एग्जैक्टली समझ पाओगे कि वो पेन कैसा है, जब वो सांस नहीं आ रही तो वो पेन कैसा है। बिल्कुल सही है। ये सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो उसे भुगत रहा हो। बिल्कुल सही कह रही तुम, इस बात के लिए मैं मान रही हूँ कि वो पेन जो के ना, घायल की गति घायल जाते हैं। हाँ। और न जाने कोई। तो वही बात है कि मैंने उस दर्द को सहा, तो मुझे पता है कि दूसरा भी वो दर्द झेल रहा है, तो वो अपना पेन मेरे को शेयर करेगा या वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगी, तो हो सकता है आपस में कोई सोल्यूशन निकल जाए।
और हम अकेला भी महसूस न करें। हाँ, जैसे मैं सोचती थी कि मैं ही क्यों, मैं अकेली ही क्यों, मैंने कभी किसी को नहीं देखा, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी एक इंडिया की प्रॉब्लम है, बल्कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। और वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे रिसर्च जो मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा या देखा है, उसके अकॉर्डिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया सेकंड, मतलब जो सेकंड रीजन ऑफ लिथैलिटी या डेथ रेट कह लें, दैट इज COPD, दैट इज ब्रीदिंग, लॉन्ग टर्म ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, एंड इट इज लीस्ट टॉक्ड अबाउट, ऑल्दो इट इज इन, it looks like, I mean, I know कि after this show, I know when she will get up and she will go to her room, I know what will happen with her, because अभी जो इतना स्माइल करते हुए और इतना ब्रेवली यहाँ बैठे हुए दिख रही है, मैं वो दिन रात देखती हूँ कि जब वो 5 कदम भी चलती हैं तो सांस लेने में जो दिक्कत होती है कि ये जंग आज भी जारी है, ये हर सेकंड जारी है। और मैं समझ सकती हूँ, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मैं सीरियसली आपको एक थर्ड पर्सन की तरह भी देखूं तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आई एम रियली रियली इंस्पायर्ड बाय योर स्ट्रेंथ, बाय योर पॉजिटिविटी एंड दिस चाइल्ड लाइक ज़ील यू हैव। हर चीज को जो आप एक न्यू बॉर्न बेबी के एक्साइटमेंट से देखती हो ना, मुझे वो इतनी इंस्पायर करती है कि जब भी मैं डाउन हूँ लाइफ में और मुझे ऐसा लगे कि कुछ नहीं बचा जीवन में, जो ऐसा मुझे लगा है कई बार, तो मैंने हमेशा बस उन्हीं आंखों को देख के मुझ में हिम्मत आई है कि नहीं, अगर माँ कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो मतलब मेरे पास क्या कमी है। और मैं उन सभी व्यूअर्स को जो हमारे साथ हैं अभी, जो बहुत ही अच्छे मैसेजेस भी दे रहे हैं, जैसे कि श्रीनिवास जी का कहना है, इट इज दोज सैक्रिफाइसेस डन बाय योर मॉम दैट बोथ सिबलिंग्स हैव दीज वैल्यूज टुडे। थैंक यू श्रीनिवास जी, थैंक यू। And Muskan says true. Thank you, Muskan, for joining us. And we have a Facebook user with us who says, कोरोना में बहुत लोग शादी कर रहे हैं बिल्कुल, और लोग उन्हें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। Yes, Swati ji, your mom is truly brave and inspirational person. Thank you so much. Kudos to you, Madhu ji. Thank you. I am sorry I cannot read your name. Can you please type your name? I can only see Facebook user. Can you please type your name? तो इस टाइम पे मैं देखती हूँ कि एज अ थर्ड पर्सन जब मैं आपको देखती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ, और जब मैं आपको एक माँ की तरह देखती हूँ तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपकी डॉटर हूँ, और मैं प्राउड हूँ कि मतलब इतनी, मैं सीरियसली बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। ओके, हाय मधुरा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर द लवली वर्ड्स। तो ओके, तो थैंक यू सो मच माँ की, मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या हो, मेरी माँ के बियॉन्ड आप क्या हो। और जब भी मैं उस पर्सन से मिलती हूँ या उसकी बातें सुनती हूँ, और मैं जब भी उस पर्सन के साथ मिलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि, एंड आई फील ब्लेस्ड कि in this life we have crossed paths, and not only crossed path, हम actually इस evolution की जर्नी में साथ हैं, और हम इसको साथ में enjoy करते हुए grow कर रहे हैं, and it's been a blessing to be with you. So thank you so much for being my guest. Thank you for being my mom. Thank you बेटा। मुझे पता है कि जैसे पेरेंट्स के बच्चे छोटी छोटी खुशियां बांटते हैं, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, तो उनको कितनी खुशी होती है। जैसे बचपन में बच्चों को हमने छोटी छोटी चीजें दिलाई, उनकी चेहरे पे खुशी देखते थे, आज वही खुशी हमारे चेहरे पे आती है। हाँ। तो इसी तरह से जब हम अपने पेरेंट्स के लिए, जब उन्होंने हमारी जिंदगी पर बर्थडे मनाई और हम अपने पेरेंट्स की बर्थडे मनाते हैं, तो एक अलग ही खुशी होती है, आनंद होता है। हमारे घर में शुरू से ये रहा है कि नाना जी की बर्थडे हम मनाते थे, चाहे धनतेरस है, पर हम सब लोग पूरा परिवार इकट्ठा होते थे। और छोटे से छोटा भाई हो तो उसकी भी बर्थडे मनती थी, और उस टाइम कोई केक और ये सिस्टम नहीं थे, लेकिन जो भी घर में हलवा बना उससे सब तिलक करते थे, और उस आदमी को वैल्यू प्रोवाइड करते थे कि आज इसका बर्थडे है तो उसको स्पेशल ट्रीट किया जाता था, उसको वैल्यू लगती थी कि हाँ आज मेरा बर्थडे है। तो यही एक खुशी होती है
ये मैंने शुरू से सीखा और देखा है। तो और बच्चों के जो पेरेंट्स का दुख देखा होता है चेहरे पे, वो मैंने फील किया है। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ देखा है कि मैं कैसे दुखी होती थी जब मेरे मम्मी पापा बीमार थे, तो मैं भी उनके साथ ऐसी ही थी जैसे आज तो मेरे साथ है। तो मुझे मालूम है कि वो कितना बुरा पेन होता है। तो मुझे उस चीज का एहसास है, मुझे वो भी एहसास है कि एक बेटी का क्या रोल होता है, और मुझे वो भी एहसास है कि माँ का क्या है। तो मैंने हर सिचुएशन देखी है, इसलिए मुझे पता है कि आज तुम लोगों का ये टेंशन, अगर मैं इस तरह से खुश और ऐसे रहूंगी तो तुम लोगों का भी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी और तुम लोग भी खुश रहोगे। तो तुम्हारी खुशी भी मेरी खुशी है। थैंक यू माँ। और मैं आई नो दिस में साउंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट आई जस्ट वांट टू से कि लोग बोलते हैं कि the only unconditional love on this planet is mother's love, and I truly feel that, and I am blessed that I have that in my life. And I pray to God that everybody who's watching or who's listening to us right now, or even watches the recordings later, I wish कि आप लोगों को भी वो feeling आप महसूस करें अपनी life में. और thank you for joining us. This is an initiative from me to discover these beautiful stories behind the seniors of our society. And I would like to thank our guest Arvind ji, the viewers, Richa Prohit, that's my mommy, and Facebook user Bravo, inspirational Vyas girl, Sitesh ji, she says ki inspirational story Madhu auntie. Thank you Sitesh ji. Santosh says you are strong values with belief making us your fans and devotees. Oh, thank you Santosh. And even you are doing a great job, Swati. Thank you so much. Remaining strong for her and looking after your mom in a great way. Madhura, thank you so much, Madhura. Shubho is there with us. Very nice, auntie. Thank you. Muskan says, Madhu auntie, you are in true inspiration. So thank you very much everybody for joining us. And मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी। हाँ बोलो। कि थैंक यू स्वाति, आई ब्लेस्ड कि मेरी बेटी है और इसने इतने अच्छे विचार हैं कि इसने ये सोचा कि मैं अपनी माँ को बियॉन्ड माय माँ देखूं। तो इसका ये थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एडमायर एंड आई लव यू बेटा। लव यू टू माँ। इसी तरह से अगर हर परिवार में बच्चे सोचें तो बहुत लाइफ इजी और खुशहाल हो जाएगी, ये मेरा मानना है। Thank you, Ma. Thank you, and thank you everybody for joining us. Love you. Love you, Ma. Okay, we'll be back next Friday, and I will be having another inspirational person, another story. Let's find what are the stories behind our citizens, and let's look at them beyond the labels that we have given them. And I'm sure you guys enjoyed us. Thank you for being with us for 48 minutes. Thank you guys. Thank you everybody. Take care. Good night. God bless you.